हाँ जी, तो फिर आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रिफॉर्म के सबसे पहले रीजन को माना जाता है कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियन सोसाइटी। तो जब यूरोपियन इंडिया की सोसाइटी के अंदर आए तो वहाँ पर उन्हें एक ऐसी सोसाइटी देखने को मिली जहाँ पर उन्हें रिलीजन को फॉलो करना होता था, पर जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रिचुअल फॉलो नहीं करना होता था। इनका जो रिलीजन था वो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी के ऊपर था, प्रोग्रेसिव थिंकिंग को लेकर था, और जो भारतीय लोग थे वो इस तरीके की सोसाइटी पहले से चाहते थे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन माना जाता है इस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म का इंग्लिश एजुकेशन। ड्यू टू इंग्लिश एजुकेशन इंडिया नो अबाउट द यूरोपियन रेवोल्यूशन, इन्वेंशन, रिसर्च विच इंक्लूड modern value Indian society. Due to the Indian translation, the India succeed to read the ancient literature which induced the awakening of the Indian society. तीसरा सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है क्रिश्चियन मशीनरी को। द क्रिश्चियन मशीनरी मेड द फन ऑन द हिंदू एंड इस्लामिक रिलीजन्स. So India knew about the social bad culture, and later on the Indian start try to reduce the bad culture or bad customs. And the fourth reason was the English law. English made a law on the sati and the slavery practice and passed the Widow Remarriage Act, which boosted the Indian social reformer, and the movement got the momentum. And that the reform is done by the Lord William Bentinck. And the fifth reform was the means of transportation and the communication. Due to the development of the social mobility was increased and the social narrow mentality was reduced. And the sixth point was the rise in the middle class population. Due to the English education, the middle class developed the Indian society. This middle class led to the social and the religious reform movement, because they knew the social, religious reform, political reform can't happen without effort. The seventh reason was the newspaper and the book. Our social reformer published many newspaper, wrote many books. They attack directly or indirectly the social bad custom, which make the social reform feasible. And the eighth point was the rewriting the history. English did rewrite the Indian history. They described that the ancient era was the Hindu era and the medieval era is the Muslim era, because they want to divide the Indian society. During this, Englishman described the ancient era was the golden era. So India start to think about to make the new society like modern era with the Britishers. And the eighth point is the self motivation. Raja Ram Mohan Roy and Ishwar Chand Sagar was a social reformer. They start to come in the front for the social self motivation and work for the social awakening. And the 10th point was the rise in the nationalism, Rashtravad. 19th century era was the nationalism rise in all the world. So the nationalism also raised in India during this phase of the nationalism. Social and religious reform were mandate or compulsory at that time. तो अब हम कुछ सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन वाज द राजा राम मोहन रॉय। इन्हें फादर बोला जाता है मॉडर्न इंडिया का, और फादर ऑफ इंडियन रेनेसां भी बोला जाता है, मतलब पुनर्जागरक। इन्हें ब्रिज बोला जाता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, और एक ब्रिज की तरह इन्हें बोला जाता है कि वो ईस्ट के साथ और वेस्ट के साथ एक ब्रिज की तरह कॉम्बिनेशन किया करते थे, कंबाइन किया करते थे। ये एक बहुत अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करके रखते हैं इंडियंस का ब्रिटिशर्स के साथ। अब हम इनके कुछ संगठनों के बारे में और इनके कुछ कमेटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली जो इनकी कमेटी बनाई गई थी जिनका नाम था आत्मीय सभा, जो कि 1815 ईस्वी में बनाई गई थी। इन्होंने हिंदू कॉलेज का निर्माण करवाया था 1817 ईस्वी में। इन्होंने वेदांता कॉलेज बनवाया था 1825 ईस्वी में। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। इन्होंने ही कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी को इंट्रोड्यूस किया था, इस्टेब्लिश किया था। हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के लिए इन्हें सपोर्ट मिला था डेविड हैरे के, जो कि एक डच थे और ये घड़ी साज थे, और अलेक्जेंडर डफ्ट जो थे, जो कि एक धर्म प्रचारक थे। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के लिए इनको सपोर्ट किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज के लिए भी एक कॉलेजों को स्थापित किया था, जिनमें इनका सपोर्ट ताराचंद्र चक्रवर्ती जो कि प्राइम लीडर थे, इन्होंने इनका सपोर्ट किया था। अब दूसरे द्वारिकानाथ टैगोर
जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादा हैं। और तीसरे जो व्यक्ति थे जिन्होंने इनका सपोर्ट किया था, जिनका नाम था प्रसन्न कुमार टैगोर। एंड द फोर्थ वन इज चंद्रशेखर देव। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुकों के बारे में बात करते हैं। इनकी बुक का नाम था तुल फुतूह मुहाब्बिदीन, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट और एकेश्वरवादियों के लिए उपहार। इनकी दूसरी बुक का नाम था प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। और तीसरी इनकी बुक का नाम था हिंदू उत्तराधिकारी के नियम, मतलब द लॉ ऑफ हिंदू सक्सेशंस। अब बुकों के बाद अब हम इनके न्यूज़पेपर के बारे में स्टडी करते हैं। इनका पहले अखबार का नाम है मिरातुल अखबार, जो कि फ़ारसी लैंग्वेज में पब्लिश किया जाता था। संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद, जो कि बांग्ला में पब्लिश की जाती थी। इनके तीसरे जो न्यूज़पेपर का नाम है, जिनका नाम है ब्रह्मनिकल मैगजीन, जो कि इंग्लिश में पब्लिश की जाती थी। अब हम इनके थिंकिंग और इनके आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये सपोर्ट किस किस को किया करते थे और अपोज किस किस को किया करते थे। तो सबसे पहले हम इनके सपोर्ट की बात करते हैं कि ये किन किन चीज़ों को सपोर्ट किया करते थे। जैसे सपोर्टर थे मोनोथिस्ट के, ये इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया करते थे, ये फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट किया करते थे, प्रेस की फ्रीडम को सपोर्ट किया करते थे। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट कमीशन को सपोर्ट किया था। इंडियनाइजेशन इन हाई सर्विस को भी इन्होंने प्रमोट किया, सेपरेशन ऑफ पावर को प्रमोट किया, जूरी सिस्टम को और यूरोपियन ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया और इंटरनेशनलिज्म को भी इन्होंने प्रमोट किया। ये नेपल्स क्रांति जो कि 1821 में हुई थी, जो कि विफल हुई थी, और स्पेन क्रांति जो कि 1822 में हुई थी, और इसमें इस क्रांति का विफल ना होकर इस क्रांति में जीत मिली थी। तो सपोर्ट के बाद अब हम देखेंगे कि जो राजा राममोहन रॉय थे किन किन चीज़ों को अपोज किया करते थे। ये मल्टी गोड सिस्टम को अपोज किया करते थे, ये वर्ण व्यवस्था मतलब लेवल सिस्टम को अपोज किया करते थे, कास्ट सिस्टम, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी, फीमेल मर्डर, थ्योरी ऑफ इनकार्सिनेशन एंड आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा को ये अपोज किया करते थे। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेशनलिज्म की, तो 1821 में जो नेपल्स रिवॉल्यूशन हुआ था इटली में, उसके फेल हो जाने के कारण इन्होंने अपने कई प्रोग्राम्स को कैंसिल कर दिया था। अगर हम बात करें 1822 एडी की, इन 1822 एडी ऑन सक्सेस ऑफ स्पेन रिवॉल्यूशन ही ऑर्गेनाइज द पब्लिक फेस्ट फूड। और इन्होंने अपोज किया था आयरलैंड का, जिसमें एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था जमींदारों का। और 1833 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिटेन में। और जिस वजह से 1843 एडी में देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज को लीड करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम है द्वारिक, जो कि इनके फादर हैं, और देवेंद्रनाथ टैगोर के जो बेटे हैं उनके नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। और 1857 एडी में केशव चंद्र सेन ज्वाइन कर लेते हैं ब्रह्म समाज को, और इन्हें अपॉइंट कर दिया जाता है आचार्य ऑफ ब्रह्म। और इसके बाद 1867 एडी में केशव चंद्र सेन वर डिपोस्टेड फ्रॉम द ब्रह्म समाज, एंड आफ्टर दैट द ब्रह्म समाज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट्स और फर्स्ट सेक्ट इज कम फ्रॉम देवेंद्रनाथ टैगोर, और जो दूसरा सेक्ट था जो बदल गया केशव चंद्र सेन की तरफ, और इस पार्ट का नाम हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। और देवेंद्रनाथ टैगोर की जो साइड थी उनका जो समाज बना उसे आदि ब्रह्म समाज बोला जाता है। और इसके बाद ड्यू टू द एफर्ट ऑफ केशव चंद्र सेन द नेटिव मैरिज एक्ट वाज पास इन 1872। तो इसके बाद जो मिनिमम मैरिज एक्ट मैरिज की जो एज है वो डिसाइड की गई, गर्ल्स के लिए 14 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 16 ईयर्स डिसाइड की गई। लेकिन कुछ बिहार में जो केशव चंद्र सेन थे वो अपनी माइनर डॉटर की जो मैरिज है वो शादी कर देते हैं इनकी कुछ बिहार के एक राजा के साथ, जिस बात से नाराज़ होके जो भारतीय ब्रह्म समाज है, इंडियन ब्रह्म समाज है, वो फिर से डिवाइड हो जाता है। इन 1878 साधारण ब्रह्म समाज की फॉर्मेशन होती है। तो अब हम बात करेंगे कुछ वर्कर्स के बारे में जो साधारण ब्रह्म समाज से रिलेट किया करते थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारिकानाथ गांगुली। तो ब्रह्म समाज पहले डिवाइड हुआ था आदि ब्रह्म समाज, जो कि देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लीड किया जा रहा था, और भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा लीड किया जा रहा था। इसके बाद जो भारतीय ब्रह्म समाज है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है
साधारण ब्रह्म समाज में, जो कि लीड किया जा रहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा और द्वारकानाथ गांगुली के द्वारा। तो देवेंद्र नाथ टैगोर की कुछ सभाओं के नाम और मैगजीन्स के नाम पढ़ते हैं। सभाओं में सबसे पहले आता है तत्वबोधिनी समाज, जो कि 1839 एडी में इन्होंने किया था, और मैगजीन इन्होंने पब्लिश करी थी तत्वबोधिनी। इनके जो मेन एडिटर थे जिनका नाम था अक्षय कुमार दत्त। तो अब हम बात करेंगे केशव चंद्र सेन की सभा मतलब संगठन के बारे में और न्यूज़पेपर के बारे में। तो सभाओं की बात करें तो इन्होंने एक मैत्री संघ बनाया था जिसको बोला जाता है संगत सभा। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बनाया था। और तीसरे की अगर हम बात करें तो टबरनेकल ऑफ न्यूज़ डिस्पेंसर्स, इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था इंडियन मिरर। और ये एक पहला न्यूज़पेपर था जो हर दिन पब्लिश किया जाता था। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर बोला जाता था इसे, इंडियन मिरर को, जो कि केशव चंद्र सेन के द्वारा पब्लिश किया जाता था। तो इसके बाद अगर हम देखें तो राजा राममोहन रॉय और सुब्रमण्यम शास्त्री के बीच में एक डिबेट कंडक्ट हुई थी आइडियल वर्सेस के ऊपर, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज साउथ इंडिया में उसे बोला जाता था वेद समाज, और महाराष्ट्र में इसे बोला जाता था प्रार्थना समाज। तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1864 एडी में की गई थी, और इनके फाउंडर माने जाते हैं घरलू नायडू को और विश्वनाथ मुदलियर को। और वहीं महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1867 एडी में, और इसके फाउंडर माना जाते हैं केशव चंद्र सेन को। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो ब्रह्म समाज की तरह ही थे, कास्ट, चाइल्ड मैरिज, फीमेल एजुकेशन और विडो मैगजीन। और इसके साथ साथ इनके कुछ और भी फाउंडर्स थे जिनका नाम है जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे और आत्माराम पंडुरंग और आर.जी. भटनागर और चंद्रवकार। अब हम गुरु की बात करें तो रनाडे गोखले के गुरु हैं और गोखले गांधी जी के गुरु हैं। तो अब हम अगले रिफॉर्मर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखेंगे, जिनका जन्म मोरवी गुजरात के अंदर हुआ था 1824 ईडी में। इनका रियल नाम मूल शंकर था। इनके जो पहले गुरु थे जिनका नाम था पुरानंद जी, और दूसरे गुरु का नाम था विरजानंद जी, जिन्होंने इन्हें वेदों की नॉलेज दी थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का एक स्लोगन था जो ये बोला करते थे, बैक टू वेदास। और ये कंसीडर किया करते थे ऋग वेदा को एक ऑथेंटिक टेक्स्ट की तरह। ही सपोर्ट कर्मा बेस वर्ना सिस्टम बट ही डिनाइड द बर्थ बेस वर्ण सिस्टम। He criticized the caste system and untouchability. He criticized the idol worship and opposed the theory of incarnation. And he support monotheism and support the woman education, and also he support the यज्ञ। और इन्हीं के टाइम पे जो शूद्राज और वुमेन्स है वो यज्ञ में पार्टिसिपेट ले सकेंगी। इन्होंने राष्ट्रवाद, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी पर बल दिया। इन्होंने इसके साथ साथ हिंदी भाषा का भी सपोर्ट किया। इन्हें भी फाउंडर बोला जाता आर्य समाज का। इन्होंने आर्य समाज के लिए 1875 में बॉम्बे में, 1877 में लाहौर में और 1878 में ब्रह्म समाज को स्प्रेड किया। इनके द्वारा लिखी हुई बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और 1883 एडी में इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। और इनके डेथ के बाद जो आर्य समाज है वो दो ग्रुप में बढ़ जाता है, वेस्टर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन में। वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने वाले जो थे, वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करने वाला जो आर्य समाज था जिसके सपोर्टर थे लाला लाजपत राय, लाला हंस राय। और इन्हीं के अफोर्ड से जो डीएवी जो कॉलेज और स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया। डीएवी की फुल फॉर्म हुआ करती थी दयानंद एंग्लो वैदिक। और वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करने वाले थे मुंशीराम, जो कि स्वामी श्रद्धानंद के ही भक्त थे, और लेखराम। इन्होंने इस्टेब्लिश किए गुरुकुल कंगड़ी, जो कि 1902 में इस्टेब्लिश किया था और आज के समय पे हरिद्वार में प्रेजेंट है। आर्य समाज में एक बहुत शुद्धि आंदोलन चला था जिसमें जो कन्वर्टेड हिंदू है उनको दोबारा से प्योर हिंदू बनाया जाता था, और ये काम भी किया था। और आर्य समाज एक ऐसा समाज बन चुका था जहां पर ये लोग इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करते थे। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है वैलेंटाइन रिलोल, जिन्होंने बोला कि आर्य समाज जो है वो फादर माने जाते हैं इंडियन अनरेस्ट के। ही ऑल्सो सेड द बाल गंगाधर तिलक इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इनकी एक बुक थी जिनका नाम था इंडियन अनरेस्ट।
इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे आर्य समाज का इम्पैक्ट क्या रहा राजस्थान में। ऐसा माना जाता है 1865 एडी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करौली को विजिट किया और ये राजस्थान में इनकी पहली विजिट थी। करौली के जो राजा थे उस समय मदनपाल, इन्होंने इन्हें इनवाइट किया और इसी के कुछ समय के बाद 1881 एडी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने भरतपुर को विजिट किया। इन्हीं के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया अजमेर में आर्य समाज और जयपुर में वैदिक धर्म सभा 1881 एडी में इस्टेब्लिश किया गया। इन्हीं के समय पे कवि राजा श्यामल दास को इनविटेशन दिया गया था और इस समय पर जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे उदयपुर में थे, जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए नौलखा पैलेस महल बनवाया गया था और इस पैलेस का नाम था गुलाब बाग, जहाँ पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की जो एडिशन थी उस बुक को लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। इसी के ही कुछ सालों के बाद 1883 एडी में परोपकारी सभा बुलाई जाती है, जहाँ जिसके चेयरपर्सन माने जाते हैं महाराणा सज्जन सिंह। और बाद में इस जो हेडक्वार्टर जो था परोपकारी सभा का उसे अजमेर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर इन्होंने एक वैदिक यंत्रालय नाम का एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी अजमेर के अंदर, जहाँ से इन्होंने सत्य प्रकाश को पब्लिश करना स्टार्ट किया था। और मेवाड़ में विष्णु पंड्या ने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था। अलवर में वासुदेव खंडेलवाल ने आर्य समाज को इस्टेब्लिश किया था। तो अब हम बात करेंगे कुछ मेन वर्कर ऑफ द आर्य समाज की। सबसे पहले हम अजमेर की बात करते हैं, जहाँ पर चंद्रकरण शारदा और हरिविलास शारदा, जिन्होंने 1829 ईडी में चाइल्ड रिमैरिज एक्ट पास करवाया था और इसको शारदा एक्ट भी बोला जाता है 1929 एडी को। और भरतपुर में जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र, जयपुर में कल्याण सिंह और श्यामल लाल वर्मा, जोधपुर में महाराणा जसवंत सिंह सेकंड और सर प्रताप और राव राजा तेज सिंह, शाहपुरा में राजा नहर सिंह ने आर्य समाज के मेन वर्कर कहलाए। ऐसा माना जाता है महाराणा जसवंत सिंह सेकंड की एक जीव थी जिनका नाम था नन्नी जान। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और ऑन द डे ऑफ दीपावली इन 1883 एडी में। So due to Arya Samaj, political awakening was increased in Rajasthan, which suppressed the political movement and Prajamandal movement in Rajasthan. So due to Swami Dayanand Saraswati, the social bad custom decreased in Rajasthan, like Parda system and women education. Swami Dayanand Saraswati influenced on King of Rajasthan, which brought the liberal ruler in Rajasthan. जिसकी वजह से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड होने लगे। मैनी ऑफ द न्यूज़पेपर एंड बुक वर पब्लिश्ड विच आर प्रमोटेड फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एट दैट टाइम द राजस्थान प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज, इंडिजीनियस गुड्स आर प्रमोटेड एंड ऑल्सो ड्यू टू द एफर्ट ऑफ हरविलास शारदा द चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वॉज पास्ड इन 1929 AD. And this act was also known as the Sarda Act. Here the minimum age for the marriage for the girls is the 14 year and the boys is for the 18 year. The book that is written by the Chandkaran Sarda, the first one is Vidhva Viva and the second one is Dalit Uddar. And in 1922 AD, Kalyan Singh Syamlal Verma स्टार्ट द हिंदू राज्य सभा आंदोलन इन जयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद जो अगले रिफॉर्मर है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद, इनके रियल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। इनके मास्टर का नाम है रामकृष्णा परमहंस, जो कि एक अनपढ़ व्यक्ति थे। इनके वाइफ का नाम था शारदा मणि और इन्होंने अपनी वाइफ को गॉडेस काली की तरह मानना स्टार्ट कर दिया था। और कृष्णा परमहंस नरेंद्र नाथ से शिक्षा लेने के बाद ये अपने नाम को बदल देते हैं, विविधेशानंद कर देते हैं। इसके बाद वो 1893 एडी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट लेते हैं और अजीत सिंह है इस समय, जो कि केतड़ी के किंग है।
And then later on, the Khetri Raja suggests his name of the Vivekananda and give financial support for Chicago visit. In 1893 AD, Vivekananda joined the World Religious Parliament in Chicago and promote the Indian culture. तो हम ये कह सकते हैं कि 1893 में इन्होंने शिकागो में पार्टिसिपेट लिया था और 1896 एडी में न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांता सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। और इसी समय के आसपास 1897 एडी में वेलोर, जो कि उस समय कोलकाता में पाया जाता था, रामकृष्णा मिशन को उन्होंने इस्टेब्लिश किया और मार्गरेट नोबल निवेदिता वाज द मेड ऑफ हिज चीफ। और इसके बाद रामकृष्णा मिशन को इस्टेब्लिश किया गया अल्मोड़ा में। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज़पेपर जो कि विवेकानंद के द्वारा प्रसिद्ध पब्लिश किया गया। द फर्स्ट वन इज प्रबुद्ध भारत, जो कि इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था, और उद्बोधन, जो कि बांग्ला में पब्लिश किया जाता था। इनके द्वारा लिखी गई कुछ बुकों के नाम जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, और मैं समाजवादी हूँ, और लेक्चर फ्रॉम द कॉम्बो टू अल्मोड़ा। And Swami Vivekananda spread the Indian culture in European or Western countries. Vivekananda added Indian spiritualism and the Western materialism, so need to manage the balance. Vivekananda influenced nationalism and the self-respect among the Indian youth. He supported the ideology, worship and polytheisms. They gave the practice approach to ritualism. Subhash Chandra Bose called Vivekananda as a father of spiritual Indian national movement as spirituals. विवेकानंद के बाद एक फॉरेन महिला है जो कि सोशल रिफॉर्मर कहलाई जाती है, जिनका नाम है एनी बिसेंट, जो कि एक मेंबर थी थियोलॉजिकल सोसाइटी की, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 1875 एडी में न्यूयॉर्क में। और इसके फाउंडर माने जाते हैं HP बोलाट साकी और HS अल्कोर। और इसके बाद 1882 एडी में जो इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है उसे अदयार यानी मद्रास की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। और जो एनी बिसेंट है वो 1893 एडी में इंडिया आती हैं एज ए मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और 1907 एडी में एनी बिसेंट को प्रमोट कर दिया जाता है एज ए चेयरपर्सन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये 3 रिलीजन को फॉलो किया करती है। पहला हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड पर्शियन कल्चर। और ये जो सोसाइटी थी ये कर्मा थ्योरी पे बिलीव करती थी, इमोर्टल सोल को बिलीव किया करती थी, और रीबर्थ पे भी ये बिलीव किया करती थी। और ये जो सोसाइटी थी ये इम्फसाइज करती थी नॉलेज, जो कि उपनिषद में लिखी हुई थी। 1898 एडी में जो एनी बिसेंट के वर्क के द्वारा हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया। और 1916 में इस नाम को बदलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज को बना दिया गया। अब हम बात करते हैं एनी बिसेंट के द्वारा पब्लिश किए गए न्यूज़पेपर। जो पहला न्यूज़पेपर है जिसका नाम है न्यू इंडिया, दूसरा है कॉमनवेल्थ। अगले जो रिफॉर्मर है जिनका नाम है हेनरी विवान डिओर्जिया, जो कि एक एंग्लो इंडियन है, and he was the professor of Hindu College of Calcutta, and he is responsible to carry forward the thinking of Raja Ram Mohan Roy. He support free thoughts and the scientific temperament. He considered the first nationalist poets in India. इनके द्वारा बनाए हुए कुछ संगठनों के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। पहली सोसाइटी का नाम है सोसाइटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, सेकंड द एकेडमिक एसोसिएशन, थर्ड वन इज डिबेटिंग क्लब, and the fourth one is Bang Hit Sabha, and fifth one is Anglo Indian Hindu Association. इनके द्वारा पब्लिश किए जाने वाले न्यूज़पेपर के बारे में हम बात करेंगे। पहला न्यूज़पेपर है ईस्ट इंडिया, सेकंड वन इज इंडियन बजट, थर्ड वन इज कोलकाता संहिता बजट। और इन 1831 एडी इन एज ऑफ 22 ईयर डोरजिया डाई विद कोलेरा। इसके बाद अगले सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम है ज्योतिबा फूले, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनके द्वारा बनाई हुई सोसाइटी का नाम है सत्य शोधक समाज, जो कि 1873 एडी में बनाए गए थे। इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है गुलामगिरी। इनकी वाइफ का नाम है सावित्रीबाई फूले।
इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक स्कूल को इस्टेब्लिश किया था दलित और कुछ लड़कियों के लिए। एंड ही ऑल्सो रोट द बिब्लियोग्राफी ऑफ छत्रपति शिवाजी। इसके बाद अगले रिफॉर्मर है जिनका नाम है गोपाल हरिदेशमुख। इन्होंने सोसाइटी बनाई थी परमहंस मंडली, जो कि 1849 ईडी में बनाई थी। इनके द्वारा पब्लिश किए हुए न्यूज़पेपर जिसका नाम है लोक हितवादी, जो कि मराठी में पब्लिश किया जाता था। ड्यू टू दिस मैगजीन ही ऑल्सो नोन एज द लोक हितवादी। इसके बाद अगले जो रिफॉर्मर है जिनका नाम है पंडिता रमाबाई। इन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी शारदा सदन, और इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे वर्क किया था। अगले जो सोशल रिफॉर्मर है जिनका नाम है मनसाराम, और इन्होंने सोसाइटी बनाई थी मानव धर्म सभा। तो अब तक हमने हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला मूवमेंट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट, जिसके फाउंडर माने जाते हैं सर सैयद अहमद खान। और ही सर्व्ड इन ईस्ट इंडिया कंपनी। ही एम्फेसाइज ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑन मुस्लिम। He support the English rule and he did scientific explanation of Quran and he wrote the commentary on Bible. He opposed the Pir Miridi system like पीर बाबा। इन्हें चेला लाइक का जो सिस्टम होता था वो उन्होंने इसको अपोज किया था। इससे रिलेटेड अब हम कुछ सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। पहली सोसाइटी का नाम है मोहम्मद लिटरेरी एसोसिएशन, जो कि 1863 एडी में बनाई गई। साइंटिफिक सोसाइटी, जो कि 1864 एडी में बनाई गई। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 एडी में बनाया गया, और इन 1920 इट विल बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ साथ इसी के आसपास मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बिठाई गई, जो कि 1886 एडी में हुई थी। और जो फिफ्थ सोसाइटी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जो कि 1888 एडी में हुई थी। और इसके फाउंडर माने जाते हैं बनारस के किंग उस समय शिव प्रसाद थे। द एसोसिएशन इज एंटी कांग्रेस एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम कुछ स्पेशल अखबारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे तहजीब उल अखलाब, जो कि सभ्यता एवं नैतिकता पर डिपेंडेंट था। तो अगर हम कुछ बुकों का नाम पढ़े तो इन्होंने कुछ बुक के भी पब्लिश की थी, जैसे असबाबे बगावत हिंद। सेकंड जो बुक थी जिनका नाम था लॉयल मोहम्मदन इन इंडिया। थर्ड बुक का नाम है बिजनौर की बगावत। और फोर्थ बुक का नाम है कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। इनके द्वारा बनाए हुए जो कॉलेज थे उन कॉलेज के सहयोगी थे कायरल अली, आफ्ताब हुसैन अली और नाजिर अहमद। Initially, he support of Hindu-Muslim society. According to him, Hindu and Muslim are bride of beautiful eyes. But later on, he say Hindu-Muslim are a separate nation. इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ, जो कि 1860 एडी में, और दूसरा कंसेंट पास हुआ 1891 एडी में। एज ऑफ कंसेंट में जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट के द्वारा ये हुआ, जिसमें एज ऑफ कंसेंट लड़कियों की 10 साल मानी गई। लेकिन अगर हम दूसरे एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात करें जो कि 1891 एडी में हुआ था, उसमें बहराम जी मालाबारी के एफर्ट के द्वारा जो एज ऑफ कंसेंट थी लड़कियों की, उसे 12 साल किया गया। और इस बात को जो बाल गंगाधर तिलक थे इस एज ऑफ कंसेंट को अपोज कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो मैटर है ये हमारे द्वारा सॉल्व किया जाए, लाइक अ कल्चर एंड रूल्स लाइक इंडियन वेज। तो अब हम पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुए सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हुए। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देखेंगे। पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा कि जो हमारा रिलीजन है वो रिलीजियस रिचुअल फ्री हो चुका है, और जो सोशल बैड कस्टम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग गए हैं। और जो बैड कस्टम है वुमेन्स के साथ वो रिड्यूस हो रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट पे अब ध्यान दिया जा रहा है। और ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन द सोशल यूनिटी विल स्ट्रेंथन। और जो सोशल रिफॉर्मर्स है इन्होंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस को ओपन किया, जिसने एजुकेशन को प्रमोट किया। और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे इन्होंने बहुत सारी बुक्स और न्यूज़पेपर को प्रमोट किया, पब्लिश किया, जिसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाया।
And the another point is the army religious movement, ancient history of India are verified, which increase the confidence in India, which were in national movement. अगर हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। थियोसॉफिकल और अहमदिया मूवमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों को क्रिटिसाइज किया, जो कि नैरो मेंटेलिटी के लोगों को इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया सोसाइटी में। जैसे अगर हम बात करें जो आर्य समाज है उसने शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया, और सेम इसी प्रकार से बहावी दार उल इस्लाम, इन दोनों का मतलब है कि कम बैक टू होम। और इस तरीके के जो इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन थी इन्होंने कम्युनिज्म और सांप्रदायिकता का जो दंगे हैं उन्हें बढ़ाने की कोशिश की। एंड द सम रिफॉर्मर आर स्टेटस क्यू एंड दे कोट दैट द सोशल bad custom is social value and they try to protect them, so that movement is become adversed. तो अब हम इम्पैक्ट के बाद देखेंगे कि इस सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की का नेचर और फीचर किस प्रकार रहा। पहला जो पॉइंट है जिसका नाम है मॉडर्नाइजेशन। अब लोगों ने लॉजिस्टिक टाइप और ह्यूमैनिटी बेस की बातें करना स्टार्ट कर ली थी। दिस मूवमेंट वाज द मॉडर्न बिकॉज इट इंस्पायर ऑन द वेस्टर्न कल्चर एंड लॉजिक was emphasized on it, and social custom was critically described. All the problem was solved on the behalf of women, and humanism emphasized in it and social emphasize, like Brahma Samaj, Young Bengal movement and Aligarh movement. The second point is restorationist. Some social reformer consider that the modern value already exists in our culture, and for it we don't need to look the Western culture, so they oppose the westernization, example like Arya Samaj. And the third point is conservative. Some reformer are the conservatives and they quote social bad custom is a cultural value and they try to protect them and oppose the westernization. And the fourth one is the middle class. Most of the social reformer are come from the middle class and they impact this movement seen in the middle class. And the fifth point is institutional. Due to this religious reform movement, many institutions were established like Ramakrishna Mission and Satya Sodhak Samaj. And this movement was the non-violent, except Wahhabi movement, religious reform movement has non-violent nature. तो अब हम नेचर और फीचर्स के बाद पढ़ेंगे the limitation of the religious reform movement. The first point is the Indian society has a status quo and can't accept the change easily. The second point is due to the lack of education in Indian society, they are unaware to accept the modern values. The third point is religious reform movement did not get support from the English government. And the fourth point is the India was a large country. Due to the lack of communication, transport and the linguistic problem, the social reform does not come out from one area to another area.